Hello everyone. Today I will discuss string topic in Python programming language. I will start with how to create string. String है क्या? And string है आपका is a data type जिसमें हम क्या राइट करते हैं sequence of character. That character can be letter, digit and white space or any other symbol. Okay, like if I'm creating here str1, I can write here welcome. I can give space in between them. I can use any special symbol. I can use any number here. So this is my string one. If I write here print str1, so it will print my string with space also. Okay. Likewise, next is how to create its string. String हम कैसे write कर सकते हैं? Variable name equal to, we can write string in single quotes. We can write string in double quotes, or like I'm giving here example str1. I can use single quotes like this. I can use single quotes 3 times also is possible. Okay. Double inverted commas single time is also possible, and double inverted commas triple time is also possible. That means what we can say that single और double inverted commas one time, या फिर single और double inverted commas three times हम use कर सकते हैं to create a string. Okay. Next is how we can access a string. For that we use slicing. Okay, slicing में हम use करेंगे index value, positive index value and negative index value. Positive index value will start from 0 से. Okay, 0 to n minus 1. So first character w is 0, next character is 1, and like length क्या है हमारा यहाँ पे string का, अगर मैं check करूँ welcome write करके str1, okay, my string is welcome. If I want to check length of str1, then it will be 7. But for welcome maximum index value is 6, positive index value, because ये कहाँ से start हो रहा है 0 से, and we can say that अगर length n है तो ये n minus 1 तक वो character index value assign कर रहे हैं. Likewise we have negative index value, but negative index value will start from -1 to -n, and ये कहाँ से पॉजिटिव इंडेक्स वैल्यू के लिए हम लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं, एंड नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू के लिए हम राइट टू लेफ्ट रीड करते हैं यहाँ पे. ओके, लास्ट करेक्टर के लिए हम -1 देते हैं, लास्ट सेकंड करेक्टर के लिए वी गिव -2. ओके, फॉर दिस लाइक वी कैन चेक हियर str1 ऑफ 1 अगर हम चेक करेंगे विल गिव अस सेकंड करेक्टर, बिकॉज ये 0 से स्टार्ट करता है. सो ई इज अवर सेकंड करेक्टर इन str1. लास्ट str1 में आपने जो वैल्यू दिया है वही वो एक्सेस कर रहा है, बिकॉज आई एम राइटिंग ऑन सेल राइट नाउ. ओके, सो इफ आई राइट str1 of -1, it will give me my last character of this string, that is e. Okay, this e -1 is this e, and +1 is this e. Okay, so next is we can print our string like this. Okay, if I define a range like 0 to 2, then it will print from 0 to 1. If I write here str1 and 0 to 2, between there is a column symbol. Okay, 0 to 2 write करेंगे तो colon symbol बीच में रहेगा, and it will process from 0 to, अगर हमने 2 दिया है then it will go 2 - 1 तक. ओके, लास्ट जो वैल्यू हमने दिया है उसको रीड नहीं करेगा आफ्टर कॉलम. ओके, उससे -1 तक प्रोसेस करेगा. इसका मीनिंग क्या हुआ, 0 और 1 करेक्टर को खाली ये रीड करेगा, दैट इज WE. इफ आई राइट str1 एंड रेंज इज 0 to 6, फुल रेंज दे रही हूँ बट ये 6 को रीड नहीं करेगा, दैट मीन्स लास्ट करेक्टर को रीड नहीं करेगा. 6 को कॉलम के बाद जो हमने डिफाइन किया है 6 वैल्यूज को रीड नहीं करेगा, उससे -1 तक वो रीड करेगा, excluding 6. Okay, so answer is str1. If I write here str1 and I am writing here 0 colon, okay, that means 0 onwards all the values. Okay, str1, if I am writing here colon and -1,
माइनस कोलन के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको एक्सक्लूड ही करेगा, -1 को एक्सक्लूड करेगा, दैट विल बी WL, पूरा प्रिंट करेगा -1 को एक्सक्लूड करके, -2 onwards all. If I write welcome 0 colon -1, okay, name welcome is not defined. Okay, in place of string name I use string, okay, string 0 colon -1. ओके, ये 0 से स्टार्ट कर रहा है और कहाँ तक जा रहा है, -1 तक, बट एक्सक्लूडिंग -1, दैट मीन्स -1 से नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, -2. लाइकवाइज वी कैन एक्सेस, ओके, अगर हमने राइट किया है str1 एंड कोलन, देन आई एम राइटिंग हियर 7. ओके, 7 एक्चुअली है ही नहीं इंडेक्स वैल्यू किसी का वेलकम में, तो 0 to 6 वो कंप्लीट स्ट्रिंग वहां पे प्रिंट कर रहे हैं. ओके, फर्स्ट वैल्यू दिया यहाँ पे 0 दिया, देन दैट ऑनवर्ड्स कंप्लीट, 0 to 6 दिया, दैट मीन्स 0 to 5 वो रीड करेगा. 7 अगर दिया तो वो 0 to 6 रीड करेगा. ओके, एंड इफ आई एम राइटिंग हियर str1 ओनली -1 दिया कोलन के बाद, दैट मीन्स एक्सक्लूडिंग -1 ऑनवर्ड्स ऑल द वैल्यूज. एंड इफ आई राइट हियर -4 कोलन -1, then it will print -4, -3, -2 index value, not -1. okay, -1 को exclude करेगा यहाँ पे. okay, my string name is str1, so -4 colon -1. okay, variable name is wrong in that case, ऊपर वाले केस में. likewise we can access our string either using positive or negative indexing. okay, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, हम उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते. इफ यू वांट टू डिलीट वी कैन डिलीट कंप्लीट स्ट्रिंग. इफ आई राइट ना डिलीट str1, ये क्या करेगा, मेरा पूरा स्ट्रिंग ही डिलीट करेगा. आफ्टर दैट इफ आई वांट टू प्रिंट ना str1, इट विल गिव मी एरर मैसेज बिकॉज हमने str1 को डिलीट कर दिया है. वी कैन नॉट एक्सेस दिस str1. Next is how to concat two strings. If I am writing concat के लिए we will write z equal to x plus y, like मैंने x लिखा है. okay, x is equal to good. I am opening new ideal file because it is full. okay, str1 है मेरा क्या है, या फिर आई एम यूजिंग वेरिएबल a इक्वल टू गुड and b is equal to morning. so if I am writing c is equal to a plus b, फ्रेंड्स c अगर हमने टाइप किया तो क्या करेगा, कनकेट कर देगा दोनों को, a plus b को. ओके, that one is concat to string using plus operator. and append is plus equal to, if I write here na a plus equal to b, after that if I print a, it will be good morning. okay, a में b को append कर रहा है, ऐड कर रहा है, एंड में ऐड कर रहा है, वहां पे कुछ भी नहीं कर रहा है. append मीन्स उसके एंड में ऐड करना. ओके, एक्चुअली दोनों में एडिशन हो रहा है, बट कनकेट के लिए वी विल से ओनली प्लस सिंबल, एंड अपेंड के लिए इट इज प्लस इक्वल टू. इफ आई राइट a**2, अगर हम किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, वो उतने नंबर ऑफ टाइम हमारे स्ट्रिंग को क्या कर देगा, रिपीट कर देगा. ओके, इट शुड बी a*2 ओनली. डबल स्टार इज पावर फंक्शन, मल्टीप्लाई करना था, पावर नहीं करना था. दैट मीन्स गुड मॉर्निंग 2 टाइम्स वो प्रिंट करेगा हमारा यहाँ पे. नेक्स्ट, दैट इज फॉर रिपीटेशन स्टार. एंड स्लाइसिंग हमने यूज किया है, कोई पार्टिकुलर एक सिंगल करेक्टर अगर हमें एक्सेस करना है, देन वी विल राइट सिंगल इंडेक्स वैल्यू. ओके, अगर हमें रेंज ऑफ करेक्टर अगर एक्सेस करने हैं, देन वी विल गिव रेंज लाइक 0 to 2. सिंगल करेक्टर एक्सेस कर रहे हैं, दैट इज स्लाइसिंग. एंड अगर हम एक रेंज में 0 to 2, 0 to 4 अगर एक्सेस करें, दैट इज रेंज ऑफ स्लाइसिंग. नेक्स्ट वन इज
स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल्स, स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल हैं, उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। लाइक अगर मैंने राइट किया वहां पे a is equal to good, if I want to check id of a, अगर हमने चेक किया दिस इज द करेक्ट लोकेशन ऑफ a, इफ आई एम सेइंग a इक्वल टू a इंटू 2, ये भी हमारा a ही वेरिएबल है, बट यहाँ पे a इंटू a राइट करें। अगर हमने यहाँ चेक किया id of a again, then there is a different address location assigned to this id of a, जिसमें हमने वहां पे रिपीटेशन ऑफ स्ट्रिंग राइट किया है, a स्टार 2 राइट किया है। दिस एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट एड्रेस, ओके। उसको डिफरेंट एड्रेस लोकेशन देगा। पहले जो स्ट्रिंग हमारे सेव है, जिस लोकेशन पे सेव है, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करेगा, उसको एज इट इज रखेगा। जो हमने मॉडिफिकेशन किया है उसको दूसरी जगह पे जाके सेव करेगा और उसको दूसरा एड्रेस मेमोरी लोकेशन असाइन करेगा। सो वी कैन से दैट स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, वो वहां पे उस पर्टिकुलर लोकेशन में कोई भी चेक। ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मेट ऑपरेटर्स। अगर इफ देयर इज अ सिंगल कैरेक्टर इन योर स्ट्रिंग देन वी विल यूज %c। अगर हमने यहाँ पे राइट किया प्रिंट there is more than one character in my a variable, and if I'm writing here %c, okay, then we will write %c here. So we are getting error message in this case. Next I will create a variable with single character, like I am writing a equal to c, and if I am writing print percentage double quotes percentage d, फिर percentage variable name is a, sorry, this would be %c, okay. So in that case it will print c character. If I'm writing a equal to a b c d, and here I'm writing print %c %a, variable name is a, then it will give error message because there are more character in this case. If it is single character it will print. If there are more character in this, it will give us error message. So %c is only for single character, and %d is for decimal integer, s for string, u for unsigned decimal integer, o for octal type of number. If you want to print hexadecimal number, you will use small x or capital X. Like एक्सपोनेंशियल वैल्यूज कौन से रहते हैं, जो 1.2 E9 इस टाइप की वैल्यूज अगर आपको प्रिंट करवाना है एक्सपोनेंशियल वैल्यूज, देन यू विल यूज स्मॉल ई और कैपिटल ई। फ्लोट नंबर है आपके पास, देन यू विल यूज स्मॉल f, एंड शॉर्ट नंबर है इन फ्लोटिंग और एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, देन वी कैन यूज स्मॉल g और कैपिटल G. So how to write this format strings? Like we have string A, okay, we want to print this string, then in double quotes we will write format operator क्या है string के लिए %s। उसके बाद we don't write comma, we will write % again, और परसेंटेज को परसेंटेज से कंपेयर करेंगे और s को हम वेरिएबल के साथ चेंज करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल नेम इज a, okay, so it will print a b c d. Likewise we can write format operator, लेफ्ट साइड में हम ऑपरेटर यूज करेंगे, राइट साइड में हम परसेंटेज सिंबल के साथ में वेरिएबल नेम यूज करेंगे। इफ आई हैव वन मोर वेरिएबल लाइक b इक्वल टू pqr and I want to print these two number, then I will write print a equal to %s, in place of %s ये प्रिंट हो जाएगा उसका वैल्यू, एंड b इक्वल टू %s। आफ्टर दैट इनसाइड %, पहले हमारे पास सिर्फ यहाँ पे सिंगल करेक्टर था इसलिए हमने उसको पैरेंथेसिस में नहीं राइट किया,
This time we need to print two values, so we will use parenthesis. Okay, without that you will get error message a comma b. So a इक्वल टू परसेंटेज a के प्लेस पे उसने क्या एक्सेप्ट किया है, फर्स्ट वेरिएबल का वैल्यू दैट इज abcd, एंड b इक्वल टू परसेंटेज s. सो अगेन b ने कनेक्ट किया है सेकंड वेरिएबल के साथ, तो दोनों का वैल्यू वो इस तरह से प्रिंट करेगा यूजिंग फॉर्मेट ऑपरेटर. बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड्स है हमारे, लाइक कैपिटलाइज करना है हमें किसी भी स्ट्रिंग को. सो दिस कैपिटलाइज विल capitalize first character of your string. Okay, if I write a dot to print this, I am writing here print a dot capitalize this. Okay, जो हमारा ABCD स्ट्रिंग था उसमें सिर्फ फर्स्ट करेक्टर को उसने कैपिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया है. सेकंड इज AL एंड यूम ऑल अल्फाबेट या नंबर होंगे दो, देन ओनली वो क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स करेगा. लाइक हमारी स्ट्रिंग में ABCD है, मैंने str1 राइट किया है यहाँ पे. स्ट्रिंग इज ABCD 007. So it is a string, we should either use double quotes or single quotes, otherwise we will get error message. If I writing here print and your string name is str1 dot is AL and UM, then it is print true. Okay, if I'm writing here str1 equal to double quotes W space E space L, like this, because space is there, ये number भी नहीं है and ये digit भी नहीं है. In that case what answer we will get, we will check now. It is false because space neither a alphabet nor a digit. So in that case our answer is false. Likewise we can use is alpha. Is alpha में like only alphabet है, then only we will get true answer, otherwise it will give us false answer. Like यहाँ पे 007 है, that is digit, all अल्फाबेट होंगे देन ओनली वो ट्रू आंसर करेगा. स्पेस भी नहीं होना चाहिए वहां पे, यहाँ पे 007 डिजिट उसने यूज किया है, बिकॉज ऑफ दैट आंसर इज फॉल्स. ओके, नेक्स्ट इज डिजिट. सभी अगर आपके स्ट्रिंग में वैल्यू डिजिट हैं देन ओनली वो ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स प्रिंट करेगा. इसके केस में वो कंडीशन डायरेक्टली चेक कर रहा है एंड देयर शुड बी मिनिमम 1 करेक्टर इन योर स्ट्रिंग, तभी वो कंपेयर कर पाएगा, चेक कर पाएगा. नहीं कुछ है आपके स्ट्रिंग में, एम्प्टी स्ट्रिंग आपने यूज किया है, देन योर आंसर इज ऑलवेज फॉल्स. और कुछ डेटा है तो कंपेयर करेगा, अकॉर्डिंगली फॉल्स और ट्रू आंसर आपको करेगा. नेक्स्ट इज लोअर. सो वी विल राइट message is your string name, message dot is lower. Okay, it will print true if all the character in your string are in lowercase letter, but here in case of hello S is capital, so our answer in this case it will print false. The next is space. Okay, in 6 के केस में is space. okay, अगर आपका empty string है, space ही है, सिर्फ उसमें कुछ भी नहीं है, then only it will return you true, otherwise ये क्या रिटर्न करेगा, आपको false रिटर्न करेगा. वहां पे कुछ भी अगर space के अलावा कुछ भी है आपके string में. नेक्स्ट इज अपर. सो लाइक आपका स्ट्रिंग है यहाँ पे दिस वन. ओके, सो स्ट्रिंग इज हेलो, कैपिटल हेलो. हम चेक कर रहे हैं जो स्ट्रिंग नेम है दैट इज मैसेज. ओके, डॉट इज अपर. अगर सभी कैरेक्टर अपर केस हैं और मिनिमम 1 कैरेक्टर शुड बी देयर, तो क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू. एक भी कैरेक्टर लोअर हो गया या डिजिट हो गया, स्पेस हो गया, यू विल गेट आंसर फॉल्स. लेंथ अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग का चेक करना है देन यू कैन राइट len इनसाइड राइट योर स्ट्रिंग नेम. नेक्स्ट इज string is 1 2 3 4 and if we are writing here
string name str, okay, z fill. str1 is 00, no, 00 is already there, 9876. If I write print str1 dot z fill एंड हेयर हम बता रहे हैं कि उसकी लेंथ कितनी होना चाहिए, उतना नहीं है तो लेफ्ट साइड से उतने नंबर ऑफ जीरो वो वहां पे ऐड करेगा और टोटल लेंथ विल बी इक्वल टू 10. इस str1 डॉट लोअर अगर मैंने यहाँ पे राइट किया str1 इक्वल टू a b c d, मैंने सभी अपर केस में राइट किया है. मैंने राइट किया है यहाँ पे प्रिंट str1 डॉट लोअर. सो ये क्या कन्वर्ट करेगा उसको लोअर केस में. सो लोअर इज ए फंक्शन, सो सबको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा. एंड इफ आई एम राइटिंग है प्रिंट str1 डॉट अपर, अगेन अपर इज ए फंक्शन, सो उसको अपर केस में कन्वर्ट करेगा. नेक्स्ट इज ls स्ट्रिप. लाइक हमने स्ट्रिंग राइट किया है यहाँ पे str1 इक्वल टू, एंड यहाँ पे हमने स्पेस दिया है, then we are writing a b c d and again we are writing some space. So this is our string and we are writing here print str1 dot ls strip. So जो लीडिंग साइड से जो भी स्पेस हमने यहाँ पे राइट किया था वो क्या कर रहा है, उसको रिमूव कर रहा है. ओके और यहाँ पे आप कर्सर देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ स्पेस आफ्टर दिस. अगर हमें दोनों साइड सॉरी राइट साइड का भी स्पेस रिमूव करना है, देन वी विल राइट प्रिंट str1 डॉट rs strip. अभी अगर मैं इसमें एंड में क्लिक कर रही हूँ ना तो मेरा कर्सर स्पेस के बाद यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ आ रहा है, और rs strip किया तो देखते हैं हमारा कर्सर कहाँ जाएगा एंड के लिए. स्ट्रिंग 1 उसने लिया है और हमारा कर्सर एंड वाला उसने स्पेस वहां पे रिमूव किया है. अगेन आई एम क्रिएटिंग str1 इक्वल टू some space is there a b c d, again space is there. If we want to remove space from both side then we will, अगर अभी प्रिंट करती हूँ तो आपका स्पेस वहां पे विजिबल होगा str1, तो स्पेस के बाद ही वो ऐसे प्रिंट कर रहा है. अगर मैंने राइट किया प्रिंट str1 डॉट strip, देन ये दोनों साइड से स्पेस रिमूव करेगा. एंड में भी आपने कहीं पे क्लिक किया तो डी के बाद आपका कर्सर आ रहा है और फर्स्ट का तो आपको विजिबल है कि वो स्पेस चला ही गया वहां से. ओके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है देन लाइक मैंने राइट किया मैक्स ऑफ str1, देन किसका सबसे ज्यादा इंडेक्स वैल्यू है डी का, उसने उसको प्रिंट किया. एंड अगेन मैंने राइट किया मीन ऑफ str1, सो किसका सबसे मिनिमम इंडेक्स वैल्यू है, सॉरी ASCII कोड वैल्यू है, उसने उसको प्रिंट किया. सो स्पेस का सबसे कम कोड वैल्यू है, सो उसने इसे प्रिंट किया. सो नेक्स्ट इज, अगर हमें रिप्लेस करना है कुछ भी हमारी स्ट्रिंग में, लाइक मैंने स्ट्रिंग दिया है if you are creating string 1 equal to hello hello and hello. Okay so here we are writing print str1 डॉट रिप्लेस में क्या करेंगे, हमें ओड वैल्यू देनी है, हमें ही को रिप्लेस करना है किससे, RO से. सो जहां जहां उसे ही विजिबल होगा कंप्लीट स्ट्रिंग में उसे R के साथ में रिप्लेस कर देगा. अगेन इफ यू आर राइटिंग str1 इक्वल टू हेलो 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 like this, and I'm writing print str1 dot replace old string is he, new string is R,
and I am writing here only one parameter and close the parenthesis. देन वन अगर मैंने स्पेसिफाई किया तो वो सिर्फ फर्स्ट ही को ही आर से रिप्लेस करेगा, रिमेनिंग स्ट्रिंग में कोई भी चेंज नहीं करेगा। ओके, यू कैन स्पेसिफाई कि आपको कितनी ही आर में कन्वर्ट करने हैं यूजिंग दिस वैल्यू, यूजिंग थर्ड पैरामीटर। नेक्स्ट आपने राइट किया स्ट्रिंग डॉट टाइटल। ओके, टाइटल क्या करता है, प्रिंट str1 मेरा स्ट्रिंग का नेम है और मैंने राइट किया टाइटल। इफ आई एम यूजिंग पैरेंथेसिस, वो क्या करेगा, आपका जो स्ट्रिंग का नेम है उसमें से फर्स्ट करेक्टर को कैपिटल करेगा। यहाँ पे क्या है, कंबाइन एक स्ट्रिंग है, आई एम क्रिएटिंग अनदर स्ट्रिंग दैट इज लाइक हेलो, गिविंग स्पेस हेलो हेलो। तो यहाँ पे हर एक जो वर्ड है उसमें फर्स्ट करेक्टर को कैपिटल करेगा, इन द टाइटल फॉर्म में वो कन्वर्ट करेगा। इन शॉर्ट प्रिंट करेंगे str1 डॉट टाइटल, so every hs is now capital in the title form। ओके, अगर आपको स्वैप केस करना है, स्वैप केस मीन्स लोअर को अपर, अपर को लोअर में कन्वर्ट करेगा, देन वी विल राइट प्रिंट str1 डॉट स्वैप केस cac। सो हमारा जो एक्चुअल स्ट्रिंग था, ठीक है, उसको इसने कन्वर्ट किया है ऑल ओवर इन स्मॉल लेटर्स, तो सबको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया है उसने स्वैप केस से। नेक्स्ट, अगर हमें स्प्लिट करना है स्ट्रिंग को, लाइक मेरा स्ट्रिंग कुछ इस फॉर्म में है एंड वी आर राइटिंग str को हमने अगर स्प्लिट किया है जहां जहां कॉमा मिले वहां पे, सो वी विल राइट हेयर मेरा स्ट्रिंग है str1 इज लाइक abc कॉमा def कॉमा ghi कॉमा jkl like this। okay, we will write print str1 डॉट split। इनसाइड दैट हमें यहाँ पे डिफाइन करना है कि हम किसके बेसिस पे उसको स्प्लिट कर रहे हैं। अगर आपने ये यहाँ पे कॉमा दिया है ऐसे, अगर आपने स्पेसिफाई तो एक किया तो एक कॉमा बेस पे करेगा, लाइक अपने कोर्स में वो सिंबल देना है। अगर आपने यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं दिया देन ऑटोमेटिकली वो किसके बेसिस पे करेगा, वाइट स्पेसिस के, मीन्स आपकी स्ट्रिंग के बीच में स्पेसिस के बेसिस पे उसको स्प्लिट कर देगा। राइट नाउ देयर इज नो स्पेसिस, सो आई एम नॉट गिविंग एनी सिंबल हेयर, आई एम गिविंग स्पेस ओनली। सो देखते हैं उसने उसको स्प्लिट नहीं किया बिकॉज देयर इज नो स्पेसिस। नेक्स्ट टाइम राइटिंग कॉमा ऑपरेटर, प्रिंट str1 डॉट स्प्लिट एंड हेयर आई एम गिविंग सिंबल कॉमा, कि कॉमा के बेस पे वो स्ट्रिंग को स्प्लिट करता जाए और क्रिएट करता जाए। सो एबीसी को उसने यहाँ पे अलग से, जैसे उसे कॉमा मिला एबीसी को कंबाइन एक स्ट्रिंग बना के सेपरेट किया, अगेन कॉमा मिलने पे उससे प्रीवियस वाली जो स्ट्रिंग थी डीईएफ उसको सेपरेट किया। सो उसको एज ए लिस्ट की फॉर्म में उसने प्रिंट कर दिया है, एक ही स्ट्रिंग को चार स्ट्रिंग में डिवाइड कर दिया है। जैसे जैसे उसे कॉमा मिला वहां पे उसने स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दिया है, डिवाइड कर दिया है एक्चुअली। नेक्स्ट इज ज्वाइन। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ ज्वाइन इज लाइक हमने राइट किया प्रिंट। ओके, यहाँ पे फर्स्ट हमें स्पेसिफाई करना है कि कौन से सिंबल से हमें ये जहाँ पे कोमाज आ रहे हैं वहां पे हमें उसे ज्वाइन करते जाना है। ओके, सो इन दिस केस हम ज्वाइन करेंगे किस सिंबल से, हैश सिंबल से। ओके, देन वी विल डिफाइन दैट कि हम डॉट ऑपरेटर इज देयर टू राइट दिस। ओके, विल राइट ज्वाइन, लाइक हमने यहाँ पे राइट किया है स्ट्रिंग नेम इज लाइक, मैं ये यहीं से ले रही हूँ स्ट्रिंग नेम ABCDEF, अलग अलग स्ट्रिंग हम ले सकते हैं। ओके ओके, वेयर इज माय आइडिया, स्ट्रिंग इज ABC कॉमा DEF कॉमा JKL।
सो 3 स्ट्रिंग्स थी मेरी, ABC एंड DEF इज डिफरेंट स्ट्रिंग एंड JKL इज ऑल्सो डिफरेंट स्ट्रिंग। मैंने लिस्ट की फॉर्म में वहां पे उनको राइट किया था। ओके, आपको लिस्ट की फॉर्म में ही राइट करना है इन केस ऑफ ज्वाइन, लाइक ओके। सो ज्वाइन के अंदर आपने 3 स्ट्रिंग्स पास किए थे, उन सबको जहां जहां कॉमा था वो कॉमा रिमूव करके उसको हैश सिंबल से ज्वाइन कर दिया है और उसको कंप्लीटली एक ही स्ट्रिंग बना दिया है। वहां पे 3 डिफरेंट स्ट्रिंग नहीं है वहां पे। इन प्लेस ऑफ दिस पैरामीटर यू कैन क्रिएट लिस्ट वन लाइक दिस। लिस्ट वन इक्वल टू ABC। ओके, आप लिस्ट वन एज ए पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। ओके, प्रिंट और this time we are using this operator dot join एंड ज्वाइन में मैं पास कर रही हूँ मेरा पैरामीटर नेम इज लिस्ट वन। ओके, सो आप पैरामीटर भी वहां पे पास कर सकते हैं और या सीधा वहां पे वेरिएबल नेम लाइक लिस्ट अलग से सेपरेट क्रिएट करके वहां पे उसमें पास कर सकते हैं। बोथ आर पॉसिबल। ओके, इस आइडेंटिफायर विल चेक दैट आपने जो यहाँ पे str1 राइट किया है वो वैलिड आइडेंटिफायर है या नहीं। अगर मैंने यहाँ पे str1 राइट किया है और मैंने लिखा WE स्पेस LOME, माई स्ट्रिंग इज दिस एंड आई एम चेकिंग प्रिंट इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर में स्पेस नहीं होना चाहिए। माई स्ट्रिंग इज str1 डॉट इज आइडेंटिफायर। फॉल्स आया है बिकॉज आइडेंटिफायर में हम बीच में स्पेस नहीं लेते एंड मेरे स्ट्रिंग में स्पेस है, सो इट इज नॉट ए वैलिड आइडेंटिफायर। ओके, हेलो है जैसे ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है, सो इन दैट केस यू विल गेट आंसर ट्रू। नेक्स्ट इज एनुमरेट फंक्शन। इन केस ऑफ एनुमरेट लाइक हमने स्ट्रिंग बनाया है एस हेलो वर्ड। ओके, स्ट्रिंग नेम इज str1 इक्वल टू हमारा है हेलो वर्ड। ओके, यहाँ पे हम इसको प्रिंट करेंगे, एनुमरेट करेंगे किसकी फॉर्म में, लिस्ट की फॉर्म में उसको। एनुमरेट करेंगे और किसको एनुमरेट करेंगे, str1 को। ओके, वन parenthesis is missing there. सो वो हर एक करेक्टर को उसकी इंडेक्स वैल्यू के साथ में प्रिंट करेगा यूजिंग दिस फंक्शन। स्लाइसिंग ऑपरेटर वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।